Hello students, already 3 chapters are completed. Now this is 4th chapter, last chapter, joint stock company. So joint stock company means the meaning is given, all of you that meaning. Joint stock company means the meaning is here. Joint stock company, a company or association. Joint stock company means it is one of the company or a association consisting of individual. Okay, that company is consisting individual organized to conduct a business. So all individuals are organized a business, conduct a business. For which purpose? For gain. See that meaning. All of you see that cursor. Conduct business for gain and having a joint stock of capital. That business having joint stock of capital. Okay, now it not only the only one individual person's capital. In the company is having so many persons or so many individuals invested their capital, invested that amount. So therefore it is called as joint stock capital. Okay, that joint stock capital is represented by the shares. Okay, that capital is called as shares. Okay, I think for example, in the partnership business, the partners are invested the capital. It is called as the partners capital. In the company type, in the type of company, so any shareholders means any member of the company who as a member of the company, that person is invested the fund, that person is invested the any amount, or that amount is called as joint stock capital, or it is also called as share. Share means it is a part of, it is a unit of share capital. Okay, owned individual by the members. Okay, once again repeated in company or association consisting of an individual organized to conduct a business for gain. For example, we start any business for which purpose? Only for the profit purpose. The company also start their company for the which purpose? Only for the gain. Okay, only for the gain purpose they start the company. So any members who are the member of the company, they all of these are invested the capital. That capital is called as joint stock capital. Okay, that capital is represented in terms of share. Okay, that company is called as joint stock company. Okay, यहाँ भी एक बार आपको बोलना चाहता हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है. जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब जो भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कंपनी स्टार्ट करने के लिए सभी इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, अपना जो भी अमाउंट रहेगा वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्ट करने के बाद उस कंपनी जब स्टार्ट होती है और जो भी वहाँ अमाउंट इन्वेस्ट किए रहते हैं, मतलब जो भी मेंबर्स ऑफ द कंपनी में जो भी मेंबर्स है, वो कंपनी में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया रहता है ना, उस पैसे से कंपनी चलती है. और उस पैसे को क्या बोलते हैं हम? जॉइंट स्टॉक कैपिटल बोलते हैं. और उस कैपिटल को क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं. उस टाइप ऑफ बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? कंपनी करके बोलते हैं. उसको क्या कहते हैं? हम उसको कंपनी कहते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक, उस वर्ड पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए. जॉइंट स्टॉक मतलब वहाँ अकेला आदमी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. वहाँ कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. देखो यहाँ देखिए, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. बहुत सारे इंडिविजुअल्स बहुत सारे इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. सब मिलजुल के एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. और जो भी इंडिविजुअल मिलता है वो हर एक इंडिविजुअल बिजनेस में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है. उस पैसे को क्या बोलते हैं हम? जॉइंट स्टॉक कैपिटल. और जब ये कैपिटल होता है, उस कैपिटल को हम कंपनी के टर्म्स में क्या बोलते हैं? शेयर्स. तो इजीली बोलने का क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब सभी इंडिविजुअल्स मिलके एक ऑर्गेनाइज होके एक कंपनी स्टार्ट करते हैं. और उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं. उस कंपनी कोई अकेले की कंपनी नहीं रहती है. वहाँ बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं कंपनी में. सभी उसको, उस कंपनी का सभी को क्या रहता है? राइट रहता है. सभी उस कंपनी के ओनर रहते हैं, क्योंकि सभी लोग उसमें क्या किए रहते हैं? अपना पैसा इन्वेस्ट किया रहता है. उसलिए हम उस टाइप ऑफ कंपनी को क्या बोलते हैं? हम जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. सी, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने स्टार्ट किया है. तो कंपनी स्टार्टेड.
1 ईयर इज कंप्लीटेड। बिजनेस हम किस लिए कर रहे हैं? बिजनेस हम स्पेशली प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद तो कंपनी से हमको कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कंपनी में क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। कंपनी में क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है? तो फाइनल अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स मतलब, ये फाइनल अकाउंट का मतलब जो भी कंपनी का टोटली टर्नओवर है, एक साल का पूरा टर्नओवर है, उस एक साल में कंपनी ने कितना टर्नओवर किया है, कितना मुनाफा हुआ है, हाउ मच प्रॉफिट इज गेट दैट कंपनी, फॉर दैट पर्पज वी आर कैलकुलेटेड फाइनल अकाउंट। ओके, फाइनल मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर प्रिपेयरिंग द P&L and balance sheet. That type of account is called as final account. कंपनी का जो भी पूरा साल खत्म होता है एट द एंड ऑफ द 31st मार्च, उस टाइम में क्या करते हैं हम? कंपनी का कितना मुनाफा हुआ है, क्या लॉस, घाटे में गई है कंपनी, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उस अकाउंट्स को क्या बोलते हैं हम? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है? फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट आता है। फाइनल अकाउंट में क्या आता है? फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट आता है। सेकेंड वन क्या आएगा फाइनल अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। ये सभी फाइनल अकाउंट्स के टाइप्स है। फाइनल अकाउंट्स सडनली प्रिपेयर नहीं करते। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए सभी अकाउंट्स 1 बाय 1 प्रिपेयर करना पड़ता है आपको। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद P&L अकाउंट, उसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट। ओके, उसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बैलेंस शीट। ओके, इस टाइप हम क्या करते हैं? अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए कौन से अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेकंड आपको P&L अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। थर्ड आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फोर्थ आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? बैलेंस शीट। ये क्या है? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के तरीके, हर एक को प्रिपेयर करने के। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है? P&L अकाउंट का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है? और बैलेंस शीट का मतलब क्या है? सभी हम आगे देखेंगे। ओके, तो फाइनल अकाउंट का मतलब ओनली नॉट अ फाइनल अकाउंट, इट कंसिस्ट द ट्रेडिंग, P&L एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट। ओके, दिस इज नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? अभी ऑलरेडी आपने डिस्कस किया फाइनल अकाउंट में कौन से अकाउंट होते हैं? ट्रेडिंग, P&L एप्रोप्रिएशन। सो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग? ट्रेडिंग मीन्स टोटली, फॉर एग्जांपल यू डूइंग द बिजनेस, फॉर दैट पर्पस व्हाटएवर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, व्हाटएवर trading activities, that trading related expenditure and incomes are recorded, that incomes and recording purpose, whatever account is prepared, especially that account is called as trading account. With the help of trading account we get gross profit. Okay, see there, simply given this account is also part of the final account. सही है, ये भी अकाउंट एक पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट का पार्ट है ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट वी फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, इस अकाउंट से हमको क्या फाइंड आउट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस फाइंड करते हैं। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो क्या फाइंड आउट करते हैं हम? ग्रॉस लॉस। हाँ, प्रॉफिट तो हो सकता है, लॉस तो हो सकता है बिजनेस में। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, विच इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? हम P&L अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। ओके, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लेते हैं? ओनली हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं तो ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, द मेन मोटिव ऑफ मेकिंग दिस अकाउंट इज कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस।
हम किस लिए हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं? स्पेशली फॉर टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज द डिफरेंस ऑफ नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का मतलब क्या है? एक डिफरेंस अमाउंट है. जो भी आप सेल्स करते हो, जो भी अमाउंट टोटल सेल्स है, सेल्स करते हो, सेल्स करने के बाद जो भी पैसा आता है, तो टोटल पैसा है, सेल्स करने के बाद जो भी पैसा आता है, उस पैसे में से हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद जो भी बचता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं. नहीं बचा, रिवर्स हो गया अमाउंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस लॉस. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेन लिया है, अपने कुछ गुड्स लिया है, पेन नहीं, अपने कुछ गुड्स लिया है, उस गुड्स को आपने खरीदा है 40 रुपये में, लेकिन आप जाके मार्केट में बेचेंगे 50 रुपये में, तो आपको मुनाफा कितना हुआ? 10 रुपये. तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट 10 रुपये का. तो वैसा ही ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस डिफरेंस होता है, उसको हम नेट सेल्स बोलते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो वी विल हैव to show items of opening stock, net purchase, direct expenses, closing stock and sales for the calculating of the gross profit through this account. तो इस अकाउंट में क्या प्रिपेयर करते हैं हम? We will have to show items of opening stock. इस अकाउंट में क्या क्या आता है? What are the things are included in this account? Opening stock आएगा, opening stock, परचेज आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, सेल्स आएगा, और कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट थ्रू दिस अकाउंट. इस अकाउंट को कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक. ओके, कुछ भी नहीं, आपके तरीके में बोलना है तो सिंपली एग्जाम्पल देना है. तो एग्जाम्पल क्या है? आप एक कंपनी स्टार्ट करे हो, कंपनी के लिए कुछ कंपनी है, कंपनी का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कंपनी है, तो उस कंपनी में फॉर एक पेन प्रोड्यूसिंग कंपनी है आपकी, तो पेन प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो पेन बेचने वाले आप, तो उसलिए आपको क्या करना है? पेन फर्स्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो पेन प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा होता है और वो सेल होने तक, तो सभी उस रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रेडिंग बोलते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज. फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस वॉट एवर द एक्सपेंसेस आर इनकम्स आर इनकर्ड, these all expenses or incomes are recorded in some accounts, in particular accounts. That account is called as trading account. तो जो भी बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए आप एक अकाउंट प्रिपेयर करते हो, तो अकाउंट बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए जो भी खर्चा होता है, जो भी मुनाफा, जो भी इनकम होता है, तो सबको आपको क्या करना है? जो भी खर्चे का और इनकम को एक पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्या बोलते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, तो आपको यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है. दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट. तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट देखिए, फर्स्ट आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट. उसके बाद नीचे क्या लिखना पड़ेगा? फॉर द ईयर एंडिंग. आपको सबको कर्सर देखना है. फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ क्या लिखना है? फॉर द एंडिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2019, 2020, सो एंड सो. जिस ईयर को लास्ट एंड को अब कभी भी हम ट्रेडिंग अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर. तो क्या आएगा? ये में भी 31 मार्च 2020 आएगा, 31 मार्च 2019 आ सकता है. तो उस रिलेटेड ट्रेडिंग मतलब एक साइड का क्या लेना? देखो, डेबिट, यहाँ डेबिट है और क्रेडिट है. डेबिट और क्रेडिट, डेबिट दिख रहा है आपको? डेबिट और क्रेडिट. डेबिट साइड क्या लिखना है आपको? ओनली एक्सपेंसेस. और क्रेडिट साइड क्या लिखना है आपको? इनकम. डेबिट साइड ಏನು ಬರೀಬೇಕ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಇನ್ಕಮ್ ಬರೀಬೇಕು. Debit side recorded all the expenses, on credit side recorded all the incomes. Which income and which expenses? Only direct income and direct expenses are recorded. See there. First आपको क्या लेना है? ओपनिंग स्टॉक लेना है, जो भी ओपनिंग स्टॉक है आपका. उसके बाद परचेज लेना है. परचेज तो परचेज किया आपने कुछ भी, तो उसमें कुछ रिटर्न करते हो. तो रिटर्न मैंने अभी फॉर एग्जांपल मेरा एक गुड्स है, पेन कंपनी है, तो मैं क्या करूँगा? एक 500 लीटर इंक पेन करने के लिए पेन प्रोड्यूस करने के लिए 500 लीटर में क्या लूँगा? इंक लूँगा. तो उसमें एक 50 लीटर इंक खराब हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वापस भेज सकता हूँ. तो उस 50 लीटर इंक को क्या करना? आपको वापस भेजे. तो परचेज में टोटल 500 इंक का कॉस्ट था, उसमें परचेज रिटर्न किया आपने, तो 50 लीटर का इंक टोटल डैमेज हुआ है, तो उसको क्या करेंगे? आप वापस भेजेंगे. तो वापस भेजने के बाद नेट परचेज में वापस किया हुआ इंक लेस किया, तो लेस करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे, इसलिए हमने लेस किया है.
ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಇಂಕ್ ತಂದಿರಿ, 500 ಲೀಟ್ರ್ ಇಂಕ್ ತಂದಿರಿ, ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದ. ಆವಾಗ ಅದ್ರಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟ್ರದ ಇಂಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೈತೆ, 50 ಲೀಟ್ರ್ ಇಂಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೈತೆ, ಅದು ಹೊಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು, 9,500 ಆಯಿತು, 9,000 ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊಳೆ ಕಳಿಸಿರ್ಲ. ಸೇಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಒಂದು ಪೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋತನ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದದ, ಗೂಡ್ಸ್ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬಂದದ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಣ್ಣ ಟಮ್ ಗಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಮಾನನ್ನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈಲಿ ಒತ್ತು ಗಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಸಾಮಾನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಖರ್ಚು ಆಯ್ತಲ್ರಿ. ಖರ್ಚು ಏನು ಆಗ್ತದ, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತದ, ಆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನ ನಾವು 2 ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಬೈ ಸೈಡ್. ಇದು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ನೋಡಿ, ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಕ್ ತಂದಿರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಂದಿರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ತಂದಿರಿ, ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೊದಲಿನ ಹಳೆ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ತಂದಿರಿ, ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೇ ಬಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೇನೋ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ರಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೂ ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಊರೊಳಗೆ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಆ ಊರಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ನಿಮಗೇನು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ. ಆ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೀವು ಬಿಕಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಕಲಿತೀರಿ. ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ತಂದಾಗ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಕಸ್ಟಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಿ. ಬರೀ ರೋಡಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಳಿದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ ರೋಡಿಗೆ ತಂದು ಇಟ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೈಪ್, ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಡಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ವೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ವೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇಜಸ್ನ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರಿ ನೀವು. ವೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡೋದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಾಡಿಗೆ. ಹೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕ್ ಅದೇ ಇಂಧನ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸೇ. ಸ್ಟೋರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ 2 ಸೈಡ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು 2 साइड बरेगी अष्टे. जो अब गुड्स उत्पादन है मतलब जब आप गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन टाइम में जो भी आपको खर्चा होता है वो सभी आपको क्या करना है, 2 साइड लिखना है. तो सेम आपने ऑलरेडी मैंने बोला है, कन्नड़ में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स को क्या करेंगे आप, छोटे गाड़ी से नहीं तो टमटम से कुछ भी गुड्स आप लोडिंग अनलोडिंग करते हो, ट्रांसफर करते हो फैक्ट्री के लिए, उसको हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं. उसको खर्चा होता है, सो कुछ तो पैसा भाड़ा देना पड़ेगा, वो कैरेज इनवर्ड यहाँ लिखते हैं हम. कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रा, एक्साइज ड्यूटी ये सभी टैक्स है. क्लियरिंग चार्जेस ये भी टैक्स ही है, वो भी यहाँ लेना पड़ता है आपको. डक चार्जेस मतलब ये भी वन टाइप ऑफ है ट्रांसपोर्ट चार्ज. रॉयल्टी मतलब ये भी वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस. स्पेशली हम क्या है रॉयल्टी किसको देते हैं, ओनर को देते हैं. जो भी आप गुड्स यूज़ कर रहे हो उसको हमको क्या देना पड़ता है, भाड़ा. एक वन टाइप ऑफ रेंट है रॉयल्टी मतलब. फॉर एग्जांपल रॉयल्टी स्पेशली फॉर आप एक ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಗಣಿ ಅದ ರೀ, ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಗಣಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದದ ರೀ ಮಾಲಕರಿಗೆ. ಆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲು ತೊಗೋತಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಆ ಟೋಟಲಿ ಭೂಮಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಳತ್ತಿದೆ. ಆ ಮಾಲಕನಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ. ಸೇಮ್ ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿ ರೀ.
दिस वन टाइप ऑफ ए वेजेस, मतलब जो भी आपको फैक्ट्री में आपको सेमी स्किल्ड वर्कर सॉरी अनस्किल्ड वर्कर जो भी जॉब करते रहते हैं उसको क्या देते हैं हम, वेजेस देते हैं, मतलब कन्नड़ में हम कूली बोलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट, मतलब फैक्ट्री का भाड़ा है वो देना पड़ेगा, वो भी एक्सपेंसेस, हीटिंग एंड लाइटिंग, मतलब गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए खर्च, जो भी लाइट और करंट यूज़ करते हो वो लेना पड़ेगा, वो भी खर्चा है। कोल एंड कोक, मतलब स्पेशली ईंधन क्या बोलते हैं आप, गैसोलीन, नहीं तो जो भी आप कोल यूज़ करते हो, कोल आपको पता है तो वो भी खर्चा है। फिर इंश्योरेंस, कोल मतलब गुड्स प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हीटिंग के लिए, जनरेटर के लिए पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, उस टाइप ऑफ कोल एंड कोक, मतलब एक उससे हमको पावर मिलता है हाँ गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए। स्टोर कंज्यूमर, स्टोर के रिलेटेड चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, कुछ चार्जेस रहे, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो सभी आपको क्या करना है, यहाँ सभी टू साइड लेना है। उसके बाद गुड्स प्रोडक्शन हुआ, होने के बाद आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, सेल, बाय साइड सेल, इनकम। सेल मतलब क्या है, आपको इनकम, फॉर एग्जांपल सेल किया आपने तो आपको पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। ಈ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾವೆ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ, ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯ್ ಸೇಲ್ಸ್, when you sell, when you for example when the goods are sold, on that time you get the money, okay, that's why written by sales is a credit side. Less return, sales return मतलब मैंने अभी 10,000 रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया है, उसमें कुछ डैमेज होता है तो सामने वाला पार्टी क्या करेगा, वो गुड्स को उनको वापस देगा। तो 10,000 का गुड्स मैंने सोल्ड किया था, उसमें से उसको 1,000 रुपये का गुड्स डैमेज आया, वो वापस मुझे देगा, तो टोटल मेरा सेल्स कितना हुआ, 9,000। तो सेल्स रिटर्न को आपको क्या करना है, लेस करना है। तो कुछ प्रॉब्लम में सेल्स दिए तो आपको क्या करना है, लेस कीजिए। लास्ट में क्या है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, को पता है, हाँ ओपनिंग स्टॉक लिखिए और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखिए, और किस साइड अमाउंट ज़्यादा आता है ना उस साइड क्या होगा, प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा आया और डेबिट साइड अमाउंट कम आया तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल उल्टा हुआ, टू साइड मतलब डेबिट साइड ज़्यादा हुआ और क्रेडिट साइड कम हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस लॉस। समझ में आया, तो उसको आज आप ट्रेडिंग अकाउंट सीखे। कल हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट के बारे में देखेंगे। तो आपको कुछ डाउट आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए, नहीं समझा तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिए, ओके। ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಓಕೆ। ಬಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, सब्सक्राइब ಮಾಡಿ, मरिएबेड़ी। वीडियो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किया तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो आपको ईजिली कैच होगा, ओके। एनी डाउट तो रिप्लाई में। थैंक यू।